Rashtriya Patrakar Mahasangha (RPM) discusses rising attacks on journalists and calls for immediate action. Virendra Prasad Saini appointed Delhi NCR President Srimati Keshari Devi Mishra named General Secretary of Rashtriya Patrakar Mahasangha. The Rashtriya Patrakar Mahasangha (RPM) convened an urgent meeting at the INS Conference Hall, Delhi, to address the escalating attacks on the journalists and the pressing need to ensure their safety. Themed Protecting Journalists and Safeguarding Democracy, the event united distinguished media professionals and thought leaders who called for immediate measures to uphold journalists' rights and freedoms. The program began with a warm welcome to the chief guests who were honored with mementos and shawls. Notable attendees included Naresh Bansal, Member of Parliament and Deputy National Election in charge of the BJP, as the chief guest. Other eminent personalities were RSS thinkers Sri Suryakanta Kelkar, Dr. Mallika Gautam, Supreme Court Advocate, Advocate Kitish Gautam, Arun Goel, Chairman of IFSMN, Surinder Verma, Deputy President, National Media Confederation, Vivek Shukla, Senior journalist and writer Jawahar Jairaj, Senior journalist and film producer Sanjay Rai, President of IMA, Dhrij Kumar, RPM National Treasurer, and Dr. Pavitra Mohan Samantarai, National President of the Rashtriya Patrakar Mahasangha. Dr. Samantarai, in his keynote address, highlighted the indispensable role of journalists in upholding democracy. The safety of journalists isn't just about their personal rights, it's about defending the core of our democratic values. If journalists aren't safe, the voice of the people is silenced. We stand united on this issue and will raise it at every opportunity, he asserted. Speakers at the event expressed grave concern over the increasing threats faced by journalists, emphasizing that these assaults jeopardize not only their personal safety but also freedom of speech and expression. They unanimously advocated for a dedicated journalist safety law, urging the government to act decisively and take tangible steps to address the issue. The gathering concluded with a strong call for unity, urging journalists and citizens alike to defend the press freedom. Rashtriya Patrakar Mahasangha emphasized that the protection of journalists is essential for safeguarding democracy itself. Prominent journalists including Brajendra Goel, Jayati Jaiswal, Istiaq Ahmad, Ajit Dalai, Tabil Ahmed, Muhammad Abid, Muhammad Nasub, Amit Kumar, Rakesh Kumar, Ajesh Kumar, SK Dishit, Shivani Jalota, Hassan Ansari, Anurod Mishra, Hemant Sharma, Vishal Bharadwaj, Vishwajit Vijay Verma, Banshi Lal, Shrahansru Mahapatra, Tirtharaj Triveni, Om Thakur, Sushil Singh, Harishankar, Parvinder Acharya, Vinayak Das, Suresh Kumar, Praveen Kumar, Deepak M.A. Bernie, Nirdesh Bhardwaj, Chandrasekhar Runku attended the event. They voiced their collective support for stronger protections and pledged to stand united against injustice. At the installation ceremony, Sri Virendra Prasad Saini and Srimati Keshari Devi Mishra were appointed as President and General Secretary of Delhi NCR Unit of Rashtriya Patrakar Mahasangha. As the event wrapped up, the Rashtriya Patrakar Mahasangha resolution to advocate for the implementation for a journalist safety law. The Rashtriya Patrakar Mahasangha reaffirmed its commitment to raising this issue at the national level and ensuring its resonance across all segments of the society. Safety. That there is a need of a central legislation that provides protection to journalists. ऐसा कोई लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करता अभी जो प्रेस को प्रोटेक्ट करे ठीक से, जो फ्रीली काम कर सके, इस तरह को एम्पावर कर सके, ऐसा कोई लेजिस्लेशन आज की डेट में नहीं एग्जिस्ट करता. The other issue I wanted to talk about was dissent. डिसेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. गवर्नमेंट की सही फंक्शनिंग को इंश्योर करने के लिए डिसेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. Dissent unfortunately is taken like sedition sometimes. It is गवर्नमेंट्स डिफेंसिव हो जाती हैं अपने एक्शंस को बचाने के लिए कि भाई हमने ये करा है वो करा है, rather than being answerable to मीडिया जो फोर्थ पिलर है हमारा सोसाइटी का. एंड
It was promotion of small news agencies. जो छोटी न्यूज़ एजेंसीज होती हैं और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होते हैं, उनकी प्रमोशन होनी चाहिए. एंड मतलब मेरे मुताबिक हर घर में से एक जर्नलिस्ट होना चाहिए, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि भाई न्यूज़ इज एक्यूरेट, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, फेक न्यूज़ नहीं है. क्योंकि जर्नलिस्ट अगर ज़्यादा होंगे तो वेरिफिकेशन ज़्यादा इजीली हो सकती है. तो आई थिंक आई कंक्लूड बाय दिस. थोड़ी सी बात आपके साथ जोड़ना चाहूँगा. बहुत सी बात कही आपने कि पत्रकार हर घर में होना चाहिए. पत्रकार से एडिटर्स हम लोग छोटे अखबार क्यों बने? जब हम कहीं किसी की नौकरी कर रहे थे किसी बड़े पेपर हाउस में, मीडिया हाउस में, तो वहाँ हमारी बात को जैसा सर ने बताया कि दबाया जा रहा है. उसके बाद हम लोग फ्री होने के बाद अपना पेपर निकालना हम लोगों ने शुरू किया. आज मेरे पास 3 अखबार है, 3 में 1 डीएवी है, 2 डीएवी जिन्हें मैं आज भी संघर्ष कर रहा हूँ. जैसे बताया कि रिश्वत का मामला है और सब चीज़ें हैं. क्योंकि इसमें आपने कहा कि हमारे लिए कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए और उसके लिए हम आपका अप्रिशिएट करते हैं कि आपने हमारे साथ हमारी बात को सहयोग किया. आप बार काउंसिल की तरह से हमारी मीडिया काउंसिल को मजबूत बनाने के लिए ही हम लोगों को इस पर काम करना पड़ेगा. और मीडिया काउंसिल हमारे पास बने जिससे कि हम लोग की बात को वहाँ सुनी जाए. जी धन्यवाद. Now I would request Dr. Malika Gautam, lawyer, Supreme Court of India, New Delhi, International Court of Justice, The Hague, Netherlands, Chief Speaker. Please, ma'am, कुछ ये views हम. वैसे तो मैंने काफी कुछ प्रिपेयर किया है, बट अब मैं सोच रही हूँ कि सब लोग क्योंकि अपने मन से बोल मिसेस केसरी देवी मिश्रा को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी. इट इज़ वंडरफुल टू सी विमेन कम फॉरवर्ड. जितना ज़्यादा औरतें आगे आएंगी, आई थिंक देश आगे आएगा. एंड दूसरा, आई वुड लाइक टू ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर संजय राय. इन्होंने बहुत ही अच्छी चीजें एड्रेस करी. इनफैक्ट मैंने यहाँ पॉइंटर्स बनाए हैं उनकी बातों के, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा उनका स्पीच सुन के. ही सेड कि आजकल मीडिया हाउसेस फ्री नहीं है, व्हिच इज ट्रू. हम लोग फ्री बात कैसे करें? हमारी हर एक चीज को सेंसरशिप है. मीडिया सेंसरशिप हैज इंक्रीज्ड टू द डिग्री वेयर आप लोग खुलकर वो बात नहीं कर सकते जो आप एक्चुअली करना चाहते हो. आप डरते हो सरकार से, लोगों से, क्योंकि आजकल लोगों की मॉब मेंटालिटी बहुत हो गई है अनफॉर्चुनेटली. एंड फॉर द लास्ट 10 years, लेट्स डेफिस्ट हूँ मैं थोड़ी सी, बट फॉर द लास्ट 10 years मैंने ये नोटिस किया है कि बोलने में लोग डरते हैं. माय फादर, हु वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ डॉक्टर समंता रे, ही यूज्ड टू टेल मी, मलिका चुप हो जाओ, इतना मत बोलो, इतना खुला मत बोलो. तो सेंसरशिप घर में भी थी थोड़ी सी. He used to scare me कि आजकल लोगों का कुछ पता नहीं है, नाराज हो जाएंगे, कोई मार देगा, क्या करोगे? And I used to tell him one thing, and वही मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर करूंगी. And आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों की आवाजें ज्यादा एम्पलीफाई होकर आती हैं. सच बोल के मरना is a better way to die. अगर आप अपने आप में उस चीज को रखते हो कि भाई काश हमने ऐसे कर दिया होता है, वो कर दिया होता. If you truly want to bring a change, हमें आज़ादी नहीं मिल सकती थी अगर हम लोग गट्स नहीं लाते. और हमारा देश सिर्फ हम हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का भी देश है ये. And I feel that Muslims contribute in a very great manner because I feel that they are more educated about the grassroots. और grassroots जैसे संजय राय साहब ने बोला कि grassroots की अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे प्रॉपर रिपोर्टिंग करेंगे. ये डॉक्टर गौतम ने भी बोला कि if you don't have one journalist from one house तो आप प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते. तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पे गौर करना कि किस तरह से हम अपने देश को, हम अपने समाज को बेटर बना सकते हैं. I see that a lot of women are present here and I feel very very proud to be a part of such a panel जिसमें इतनी औरतों को इतनी अच्छी पोजीशंस पे रखा है. And I would also like to welcome श्री अरुण गोयल. I would like to welcome Mr. सुरेंद्र वर्मा. संजय राय जी तो है ही हमारे. डॉक्टर समंता रे नहीं होते तो कुछ नहीं होता. तो very truly blessed for sharing the dais with him. Mr. Sharma, Hemant Sharma, Suryakant Kelkar ji, very blessed to meet you. And of course, last but definitely not the least, Dr. Kshitij Gautam, who is a lawyer in High Court.
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की काफी नॉलेज रखते हैं, तो PIL में जरूर आपका साथ देंगे। मेरे छोटे भाई हैं तो थोड़ा मेरे को गाइड ज्यादा करते हैं, बट तो आई एम ज्यादा ही अपना काम से काम रखते हैं, बट आई एम टोटली ब्लेस्ड कि आज मैं आप सबके बीच में इस तरह से हूँ। बहुत लंबी चौड़ी मैंने फोन में स्पीच बनाई थी कि मैं ये बात करूंगी वो बात करूंगी, बट ये एकदम परिवार जैसा माहौल है। नहीं आपको करना है, नहीं करिए आप ही करेंगे, हम लोग सुन आप करिए, आप लॉयर हैं। मैं तो बहुत विश्वास रखती हूँ, मैं उन लोगों में से थी जिन्होंने मतलब काफी, आप लोगों के आंदोलन थोड़े से पुराने थे, मेरे थोड़े मैं जाती थी वहां पर भी लोगों को मोटिवेट करती थी। देखिए कोई भी, क्षितिज ने बोला जैसे डॉक्टर गौतम ने कि कोई भी चीज सेडिशन बन सकती है अगर आप उसको सेडिशन बनाना चाहें तो। देशद्रोह और देश की सेवा में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, वो आपको देशद्रोही नहीं बनाता, ये आपका हक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये अधिकार दिया गया है, ये आपका एक आजादी है, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, दैट आप खुलकर सरकार का निंदन कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि हाँ ये गलत पॉलिसी है, ये नहीं होनी चाहिए। दैट इज व्हाट मेक्स अ गुड डेमोक्रेसी। एक अच्छे डेमोक्रेसी में आप लोगों को ये अधिकार होता है कि आप अपना मुंह खोलकर ये बात कह सके खुलकर कि भाई हाँ ये पॉलिसी सरकार की गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। ये बोलना इज नॉट सेडिशन। सेडिशन इज व्हेन यू से समथिंग अगेंस्ट द कंट्री, नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। आप सरकार की बुराई कर रहे हैं तो आप एक अच्छे नागरिक हैं, अगर आप देश की बुराई कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्क समझना बहुत जरूरी है। बाकी की मेरी स्पीच इंग्लिश में बनी, अगर आप लोग इंसिस्ट कर रहे हैं तो आई विल कंटिन्यू, मैंने बना रखी है। हमारा डॉक्टर मलिका पत्रकारों की आवाज़ नवाजी जाती है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे हर घर से पत्रकार होना चाहिए, अधिकार है और ये कैसे देखते हैं। जो भी पत्रकार और ये बहुत जरूरी है, सच्चाई बाहर आती है, सच की जीत होना बहुत बड़ी बात है। देश की तरक्की सच की जीत से हो सकती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हर एक ग्रासरूट लेवल पे भी पत्रकार आए और आगे बढ़े ताकि देश आगे जैसे कि आपने देखा होगा कि पत्रकारों की आवाज़ बढ़ा दी जाती है, उनके हर सरकार को करती है, सबसे जरूरी बात याद रखनी है कि आपको अपनी आवाज़ दबने नहीं देनी चाहिए, आपको फ्री स्पीच पे यकीन रखना चाहिए, आपको अपना ह्यूमन राइट्स कानून होने चाहिए। सबसे जरूरी है कि आप सब अपने लॉज को राइट्स को जाने, उससे आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। और पत्रकार की आवाज़ एम्पलीफाई होगी और दबेगी। क्या हुआ वसूली की जा रही है, उन पत्रकारों के खिलाफ रिपोर्टिंग करके उसके ऊपर मॉब मेंटालिटी और किसी का कत्ल करना बिल्कुल गलत है, बट हाँ सच बोलने की कीमत होती है, वो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली चुकाई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सच कराया जाए। एंड इनकरेज कि आप लोग और आगे बढ़ें ताकि हम लोगों की यूनिटी हो, हम लोग बात करें, नागरिकता हमारी उसी समझ बैठे, अगर हम लोग आगे बढ़कर बात करें और ना डरें, तो बेबाक होकर निर्भीक होकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, डरना नहीं। डॉक्टर क्षितिज गौतम जी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, पत्रकारों पर किस तरह के हमले हो रहे हैं
कैसे देखते हैं कि उनसे जानना पत्रकार पर हमले किए जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे मेरे हिसाब से अनबैस्ड होना बहुत जरूरी है। पत्रकारों पर हमले होना बहुत खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई आक्रमण नहीं होना चाहिए। पत्रकारों को सेफ फील करना चाहिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद से सेफ फील करना। लॉज वगैरह बनाने चाहिए इस तरह के जिससे पत्रकारों को प्रोटेक्शन दी जाए। जैसे एडवोकेट्स के लिए प्रोटेक्शन के लिए लॉ है, वैसे ही पत्रकारों के लिए भी प्रोटेक्शन के लिए लॉ होना चाहिए। हमने देखा कि आजकल जो पत्रकार सच के विरुद्ध में आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ जवाब दी जाती है, उसके ऊपर झूठा मुकदमा किया जाता है, उसका आप कैसे देखते हैं? देखो, लिटिगेशन और मुकदमे तो होना सही चीज़ है, क्योंकि सच को जानने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। पर झूठे मुकदमे वगैरह करते हैं, वो आवाज़ दबाने की कोशिश करी जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। Society, New Delhi Bureau, Kalingo Chronicle TV.